ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے خیرت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت درود نشاور کریں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملت اسلامیہ قرآن مقدس کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جمعہ۔ جمعہ کی قدر و منزلت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، سورہ جمعہ۔ اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ اسی سورہ جمعہ کی تیسری آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ اور اس صورت کریمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان تلاوت فرمائی۔ سورہ جمعہ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع فرمائی اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے وآخرین منہم تو صحابہ کی محفل سے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں، اور ان کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ حدیث کی دوسری سب سے معتبر کتاب مسلم شریف جو بخاری کے بعد اس کا مرتبہ آتا ہے، اس کتاب کے اندر امام مسلم نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس آیت کریمہ میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس آیت کریمہ میں جن کی بات کی جا رہی ہے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی مقدس ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ قرآن کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خاموش رہے، دوسری مرتبہ وہی سوال کیا گیا، پھر آپ خاموش رہے، اور تیسری مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی پر اپنے ہاتھ کو رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اگر علم یعنی علوم دینیہ اور اپنی تمام تر شکوک اور جو ہے اس خوبیوں کے باوجود اگر علم ثریا پر ہو تو اس کو اہل فارس یعنی فارس کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک شخص القریب سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ صحابہ اور صحابہ کی مقدس جماعت سے تعلق رکھنے والے وہ صحابی کہ جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
अपना दस्ते मुबारक रख करके जुमला इरशाद फरमाया था। उस सहाबी का नाम था सलमान फारसी। बड़े मशहूर सहाबी हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मोतबर सहाबा में आपका नाम शामिल है। हज़रत सलमान फारसी फारस की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाबी है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी के ज़रिए इरशाद फरमाया कि कुछ दिनों के बाद फारस की सरजमीन पर एक ऐसा अल्लाह का बंदा पैदा होगा जो इल्म की अजमत और इल्म अगर से सरैया पर हो फिर भी उसको वो उसके जुमला और खूबियों के साथ उससे हासिल करता। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अहले फारस से और फारस की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाली वो मुक़द्दस हस्ती जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था, वो कोई मामूली हस्ती नहीं थी, बल्कि हम और आप मसाइल में जिस इमाम की पैरवी करते हैं और शरई मसाइल में जिनके बताए हुए तरीक़े पर अमल करते हैं, जिनका नाम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है, इस आयत करीमा में उनका तज़किरा किया गया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आप ही की तरफ इशारा किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से ताल्लुक़ रखने वाले इमाम आज़म जो मुक़द्दस हस्ती है, जो इल्म को सुरैया पर भी अगर वो पहुँचे तो वहाँ से भी हासिल कर करके उसको दुनिया के अंदर फैलाने की अपने अंदर सलाहियत और खूबी रखते। आज पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन हो या हिंदुस्तान से हट करके दुनिया का कोई भी मुल्क हो और किसी भी मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, तमाम मुल्क के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी इमाम के मानने वाले पाए जाते हैं तो वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मानने वाले पाए जाते हैं। बहुत सारे आज के इस दौर में कुछ गलत अफकार और नज़रियात के लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि इमाम आज़म के अंदर ये खूबी नहीं थी, ये सलाहियत नहीं थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आज़म इस ज़माने में हदीस की जितनी किताबें पाई जाती हैं, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सुनन इब्न माजा हो, या हदीस की जितनी भी मशहूर किताबें हैं और उन किताबों के लिखने वाले जितने भी मुसन्निफ़ीन हैं, उन तमाम मुसन्निफ़ीन के उस्ताद का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं वो सब, या तो डायरेक्ट उनके शागिर्द हैं या उनके शागिर्दों के शागिर्द। इमाम आज़म आज हम और आप इल्म हासिल करते हैं तो एक उस्ताद, दो उस्ताद, 10, 20, 15 मुश्किल 50 तक हमारे असातिज़ा की तादाद पहुँचती है, लेकिन इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से बयान किया जाता है कि आपने तकरीबन 4000 से ज़ायद ज़माने के बड़े बड़े उलमा, मुफ्तियान किराम, फ़ुक़हा इज़ाम, मुहद्दिसीन किराम के पास आपने इल्म हासिल किया और अइम्मे अरबा यानी इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम आज़म, ये 4 अइम्मा हैं, 4 इमाम हैं कि दीनी मसाइल में चाहे वो नमाज का मसला हो, रोज़े का मसला हो, हज और ज़कात का मसला हो, ग़ज़े की शरीयत का कोई भी मसला हो, किसी न किसी इमाम की दुनिया के अंदर लोग पैरवी करते हैं। और इन तमाम इमामों में तन्हा इमाम आज़म के अंदर वो खूबी पाई जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़ुरूने क़रनी सुम्मल लज़ीना यलूनहु,
सुम्मल्लज़ीना यलूनहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है, फिर मेरे दौर के बाद जो मेरे सहाबा का दौर है उसके बाद वो दौर बेहतर है, सहाबा के बाद ताबईन का दौर सबसे बेहतर है, और इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दौरे सहाबा के बाद जो ताबईन का ज़माना आया है, ताबईन का दौर आया है, उस दौर की अजीम हस्ती का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने जहां आरा को देखने वाले अफराद को सहाबी कहा जाता है। सहाबा के ताल्लुक से उलमा ने बयान फरमाया है कि सहाबी उस इंसान को कहा जाता है कि जिसने ईमान की हालत में रसूल की ज़ियारत की हो और ईमान की हालत में वो दुनिया से, यानी सहाबी होना ये ईमान पर खात्मे की दलील है। जिसने नबी को देखा हो उसे सहाबी कहा जाता है। लेकिन उलमा एक चीज़ और बयान फरमाते हैं कि जिसने किसी सहाबी को हालत ईमान में देखा हो और ईमान की हालत में दुनिया से गया हो तो उसे ताबई कहा जाता है। और इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी नहीं है बल्कि सहाबा को देखने वाले हैं। ईमान की हालत में आपने सहाबा की ज़ियारत की है और आपका शुमार ताबईन में होता है, यानी आपने सहाबा की ज़ियारत की है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कि अल्लाह के रसूल के ज़माने के बाद सबसे बेहतर ज़माना सहाबा का है और ताबईन का है, उस ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले इमाम आज़म ये कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं था। बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारे फ़ज़ाइल व कमालात के जामे थे। उनमें से बहुत सारी जो है सीरत की किताबों में आपके ताल्लुक़ से बयान किया गया है। और सबसे अहम चीज़ जो बयान की जाती है आपकी सवाले ज़िंदगी लिखने वाले उलमा बयान फरमाते हैं कि आपने तकरीबन 40 साल तकरीबन सन 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई और 150 यानी 50 साल में तकरीबन आपका इंतकाल हुआ। कुल मिलाकर के 70 साल आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा तकरीबन। और उलमा बयान फरमाते हैं कि 70 साल आप इस दुनिया के अंदर बाहयात रहे और उन 70 सालों में तकरीबन 40 साल तक आपने ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। जरा आप सोचें कि मुसलसल 40 साल यहाँ हम और आप एक वजू से एक नमाज पढ़ते हैं तो दूसरी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है कि हम दूसरी नमाज उसी जो है वजू से पढ़ लें। अगर दूसरी पढ़ लेते हैं तो तीसरी पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती है। हम और आपकी सफाई, तहारत और नज़ाफत का ये आलम है। कुर्बान जाइए उस अजीम हस्ती पर कि जिसने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। जबकि उलमा बयान फरमाते हैं कि ईशा के बाद आम तौर पर इंसान सोता है और सोने से इंसान का वजू टूट जाया करता है। अगर इमाम आज़म ने ईशा की नमाज वजू से फजर की नमाज अदा की है तो इसका मतलब ये है कि आपने 40 साल तक रातों को जो है आपने आराम नहीं किया है। 40 साल तक आपने रात के अंदर सोया नहीं है बल्कि अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की तस्बीह और तहलील में आपने अपनी ज़िंदगी के 40 साल जो है रात, 40 साल शब रोज़ को कुर्बान किया। ये इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। और आपके ताल्लुक़ से बयान किया जाता है कि तकरीबन 30 साल तक आपने एक रकत के अंदर पूरा कुरान सिर्फ एक रकत के अंदर खत्म करवा दिया। जरा आप बताएं, आज हम और आपके ईमान का आलम यह है कि इमाम किसी नमाज में थोड़ी सी छोटी सूरत के बजाय 2-4 आयतें अगर बड़ी तिलावत फरमा दे तो इमाम के खिलाफ धरना प्रदर्शन, इमाम के खिलाफ चेमी गोइयां, जबकि आप नमाज पढ़ रहे हो, मस्जिद में हो जिसमें एक एक सांस लेने पर आपके नाम आमाल में नेकियां लिखी जा रही है, फिर भी आप पर गिरा गुजर रहा है, आप पर तकलीफ गुजर रही है।
یہ ہے ہم اور آپ کے ایمان کا عالم. لیکن قربان جائیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ آپ نے 30 سال تک تقریباً ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا. کتنے عظیم انسان تھے وہ لوگ کہ جو قرآن کی تلاوت کا شوق اپنے دلوں کے اندر اس قدر رکھا ہے. بیان فرماتے ہیں کہ جس زمین پر، جس سرزمین پر، جس جگہ پر آپ کا انتقال ہوا ہے، نہ جانے کئی سو مرتبہ آپ نے وہاں پر قرآن کو ختم فرمایا ہے، قرآن کی تلاوت فرمائی تھی. جس جگہ پر آپ کا آخری وقت آیا، جس جگہ پر آپ نے انتقال فرمایا. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے ماننے والے پائے جاتے ہیں تو وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. اور ایک زمانے میں ایمان کی علامت، ایمان کی پہچان اور ایمان کی پختگی اور مضبوطی کا نام جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا. تو یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اور آپ مسائل میں ان کی پیروی کرتے ہیں اور ہم اور آپ یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم نے آج تک کبھی ان کا تذکرہ نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کی باتیں نہیں کی. جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اس شعبان کے مہینے میں تقریباً اس کی 2 تاریخ کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اور یہ پورا مہینہ آپ کی یادوں سے، آپ کے تذکرے سے معمور ہونا چاہیے. ہم اٹھتے بیٹھتے اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اور اپنی ہر بات میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کریں. اور صرف تذکرہ نہ کریں بلکہ ہم اور آپ سے جو کچھ ہو سکے ان کے حق میں قرآن خوانی کرائیں، ایصال ثواب کرائیں. اور یہ مت سوچیں کہ ہم قرآن خوانی کرا کر کے ان پر احسان کریں. یہ ہم اور آپ اگر ان کے حق میں کچھ کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ہم اور آپ اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سامان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم اور آپ کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم اور آپ اتنے گنہگار ہیں کہ ہم کسی اللہ والوں کے دامن میں آ جائیں، کوئی اللہ والا ہمیں اور آپ کو اپنے دامن میں لے لے تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے، ہمارا اور آپ کا احسان نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سننے میں جو کچھ کبھی بیشی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے وہ توفیق